Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online class of physics. This is chapter number 19, nuclear physics. Today the topic which we are covering in our lecture is radioactive isotopes and its uses. Although you will again try to think that why we are studying this radioactive isotopes when this has been excluded by the board in condensed syllabus. So again the reason to study this is that radioactive isotopes is again related to radioactivity, okay, and there is no harm to get the knowledge and to enhance the knowledge. And besides this, we are trying to understand that just like the radioactive elements, the radioactive isotopes also exist. Isotopes, as all of you know, it's when you have studied in chemistry as well, that when the number of electrons and protons are considered, so they are said to be atomic number of that element. And when we sum up the particles of the nucleus of an atom, that is neutron and proton, it gives us the mass number. So radioactive isotopes are those materials which have same atomic number but differ in their mass number. If you remember, we have discussed in nuclear fusion that we have fused deuterium and tritium to get the helium. Remember? In that fusion reaction, when we have studied about the deuterium and when we have talked about the tritium, these were the isotopes of hydrogen. So how they become the isotope of hydrogen? Because the isotopes, I told you, that have the same atomic number but differ in their mass number. So that's why if those isotopes have radioactivity nature as well, means अगर इन आइसोटोप्स के अंदर रेडिएशंस भी निकल रही हैं इन आइसोटोप्स में से, so they are said to be radioactive isotopes. Means those isotopes which emit invisible radiations, so they are said to be radioactive isotopes. Now, what we are going to study in this topic today is about the uses of radioactive isotopes. There are three fields in which we are studying the uses of isotopes, that is in industry, in agriculture and in medicine. When we talk about the use of isotopes in industry, so at that time we are covering the aspects of the industrial use of the radioactive isotopes. Radioactive isotopes are used to check the thickness of the material, okay. That is, if the material is, whatever the material is being made, like let's suppose paper has been made in the industry, so the thickness of the paper is quite necessary to check, or any kind of sheet, चाहे किसी किस्म की भी शीट तैयार हो रही हो तो उसकी भी थिकनेस देखी जा सकती है. एनी काइंड ऑफ पाइप बनते हैं फैक्ट्रीज में, सो उसकी भी थिकनेस देखी जा सकती है. सो दिस विल इफेक्ट द कॉस्ट, दिस विल अफेक्ट द मटेरियल यूटिलाइज्ड इन मेकिंग दीज पाइप्स, पेपर एंड शीट्स. So that's why it is very necessary to check the uniform thickness of the material, okay. Then if the material is being checked and its thickness is much more, then it will affect the counting rate, and the detector must check and balance all these things in order to give the uniform product, okay. Then this radioactive isotope is also used to detect cracks in the welded joints, मतलब कि जो joints वगैरह होते हैं उनमें कोई joints जो pipes के joints होते हैं उनमें कोई crack हो गया हो तो उसको भी देखने के लिए radioactive isotope इस्तेमाल होता है. It is used to detect leakage in pipes, मतलब कि कोई पाइप वगैरह बनाया गया है उसके अंदर कोई लीकेज है तो उसको भी चेक किया जा सकता है. कैसे? This is done by introducing small quantities of radioisotopes into the fluid. मतलब कि कैसे किया जाता है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो फ्लूइड पाइप्स में डाला जाता है, इन द फ्लूइड पाइप्स,
And then what happened? A radiation detector can be used to check whether the radioisotope is leaking anywhere from the pipe, and if it is leaking, so the pipe is indicated that it has some fault. The pipe has some fault में से कोई कसर है, कोई लीकेज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेडिएटिव आइसोटोप जो पाइप के अंदर फ्लूइड की फॉर्म में डाला गया है वो लीक हो रहा है, ठीक है ना। और कोई भी फ्लूइड पाइप है, कोई भी चीज़ फ्लूइड किसको कहते हैं, जो भी फ्लो कर रही होती है, तो पाइप के अंदर कोई भी चीज़ फ्लो हो रही होती है, तो अगर रेडिएटिव आइसोटोप डाल दिया जाएगा, कुछ ट्रेसेस डाल दिए जाएंगे रेडिएटिव आइसोटोप के उस पाइप के अंदर, तो जहाँ जहाँ से लीक हो रहा होगा वहाँ से रेडिएटिव आइसोटोप लीक होता हुआ बाहर आएगा, तो जिसकी वजह से ये पता चल जाएगा, डिटेक्टर की डिटेक्ट कर सकता है कि पाइप के अंदर लीकेज है कि नहीं है। सिमिलरली कोई भी किसी भी किस्म का वेयर एंड टेयर हो गया मशीन के अंदर या किसी भी मूविंग पार्ट्स के अंदर, तो वो भी रेडिएटिव आइसोटोप की मदद से पहचाना जा सकता है। बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड प्रिजर्व फूड, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इनटेक बाय प्लांट्स, मतलब कि जितना जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले रहे हैं उसका कितनी मिकदार चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट, उसके बारे में भी जो है वो रेडिएटिव आइसोटोप से इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज आल्सो बीन स्टडीड यूजिंग ट्रेसर्स। ट्रेसर्स किसके ट्रेसेस, रेडिएटिव आइसोटोप्स के ट्रेसेस, ठीक है ना। रेडिएटिव आइसोटोप्स को ज़्यादा वाफिर मिकदार में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता होता है, थोड़ा सा बिल्कुल ट्रेसेस ऑफ द रेडिएटिव आइसोटोप्स इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम और डिटरमाइन द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूज्ड बाय प्लांट्स। इस तरह से थोड़ी मिकदार इस्तेमाल की जा सकती है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसानदेह, तो मैंने आपको वैसे ही इसके बता दिए कि आइसोटोप्स जो हैं या रेडिएटिव आइसोटोप्स जो हैं वो नुकसानदेह होते हैं क्योंकि इनकी रेडिएशंस जो हैं वो हार्मफुल हैं, हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करती हैं, तो इसलिए थोड़ी मिकदार जो इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो गिव अस इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट the yield, it can also use to yield higher production of the plants or fertilizers of crops, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम मेडिसिन की। मेडिसिन के अंदर हमारे पास जैसे कि आयोडीन 131 है, इट इज़ यूज टू स्टडी द थायराइड ग्लैंड्स। फिर जो कोबाल्ट 60 है, रेडियो कोबाल्ट 60 मीन्स कि रेडिएटिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 यूज टू ट्रीट कैंसरस ट्यूमर्स, ओके, कि कैंसरस को डिटेक्ट करने के लिए और कैंसरस ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए उसके इलाज के लिए जो कि बॉडी के अंदर हो जाते हैं, पाए जाते हैं, उस कैंसरस ट्यूमर्स के इलाज के लिए भी जो है वो कोबाल्ट 60 इस्तेमाल होता है। बिसाइड्स दिस इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग बैंडेजेस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर सर्जिकल एसेसरीज। स्टेरिलाइजिंग करने के लिए भी जो है वो रेडिएटिव आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं। स्टेरिलाइजिंग से मुराद ये हो गया कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सर्जरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या बैंडेजेस वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, उनको स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टेरिलाइजेशन किसकी मदद से की जा सकती है, रेडिएटिव आइसोटोप्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू स्टेरिलाइज द बैंडेजेस एंड अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। बिसाइड्स the radiative isotope is also effective for treating leukemia, hemorrhages and other wounds which are inside the body, ठीक है ना। बॉडी के अंदर कोई wounds, कोई जख्म वगैरह हो गया है या कोई इन्फेक्शन वगैरह, उसके लिए भी जो है वो रेडिएटिव आइसोटोप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं दोबारा कहूँगी कि इनकी मिकदार बहुत कम होती है, ये नहीं कि बहुत वाफिर मिकदार इस्तेमाल किए जाएंगे वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। इसके अलावा रेडियो सोडियम जो है, रेडियो सोडियम हैज़ बीन एक्सट्रीमली यूज्ड इन ट्रेसिंग द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। रेडियो स्ट्रोंटियम हैज़ बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल हेमरेजेस एंड वुंड्स व्हिच आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कि ये इफेक्टिव यूज है किसका, ल्यूकीमिया और हेमरेजेस की ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पे कौन सा रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल हो रहा है, रेडियो स्ट्रोंटियम। जगह की कमी की वजह से मैंने जो है वो अलबत्ता सारी चीज़ें बुक के अंदर मेंशन है, और दोबारा मैं कहूँगी कि इन सब चीज़ों को जो है वो मैं क्विक वे में इसलिए आपको देना चाह रही हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफा भी हो जाए, और अगर के इस रेलिवेंसी के साथ कोई MCQ अगर पेपर में आ जाए या कोई भी ऐसी चीज़, या आगे आपको पता है कि NTS के टेस्ट सिस्टम्स होते हैं, NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज सिस्टम जो होता है, जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं, उनके लिए भी आपको जो है ये नॉलेज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो लिहाजा इसको
इसको आप यूजलेस बिल्कुल ना समझिएगा, और अगर देखा जाए तो ये रेडियो एक्टिविटी से लिंक भी है, मगर अगर बुक के अंदर टॉपिक वाइज चेक किया जाए और कंडेंस सिलेबस को चेक किया जाए तो ये टॉपिक हटा दिया गया है। मगर फिर भी मैं यही कहूँगी कि नॉलेज में इजाफा ज़रूर कीजिए, और प्लस पॉइंट ये कि आपके ये ब्लैंक सी फॉर्म में कवर हो जाएं, या अगर आपको एंट्री टेस्ट में भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं, लिहाजा इनको आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्विक मैंने आपको बता दिया है इस सिलसिले के ये इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है रेडिएटिव आइसोटोप्स का। आज का आपका काम जो है वो ये है कि यू हैव टू लर्न the radioactive isotopes, which is given in the notes as well in the PDF form, okay, and the details of these, the detailed study is also given in your chapter, that is chapter number 19, page number 427, 428 and 429. Okay, so that's all for the class today. Inshallah we'll meet in the next class with some new topics. Till then, Allah Hafiz.